జై స్వరాజ్ టీవీ స్వరాజ్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నేను అబ్దుల్ ఖుద్దూస్ ముస్లిం యూనిటీ డెవలప్మెంట్ మూవ్మెంట్ కార్యదర్శిని వరంగల్ కార్యదర్శిని అందరికీ అభినందిస్తున్నా ప్రేక్షకులకు అందరికీ అభినందిస్తున్నా because my Telugu is little bit difficult for me to speak in Telugu. I will continue in English. As everyone is aware, central government run by BJP party has introduced a bill to acquire work properties which is against the constitution. It is an unconstitutional thing which has been done by BJP government, fascist government. It is violation of many articles which is guaranteed in our constitution. Article 15, Article 16, Article 19 up to 19, there is written that every community, every religion has the rights to have their own work boards. Like in Hindu, endowment department is there. Sikh, there is a board to सिख कम्युनिटी में भी है, उसी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी में है। हर कम्युनिटी को वो राइट्स है कि अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करे एंड देयर विल बी नो इंटरफियरेंस बाय एनी अदर रिलीजियन पीपल इन दैट। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द सेम रिलीजियन। नाउ वर्क बिल 2025 which has become an act influenced that right by putting two non-Muslims from other communities into work board and as well as giving complete powers to district magistrate, which is again a unconstitutional way to protest these things. So in this regard, we are following the directions and advices from All India Personal Law Board, which has called for a 3-month protest plan throughout India. It will be peaceful and democratically, and there will be no protest which will harm the society. We want to build a comprehensive plan, action plan, by inviting all other religious people to support in the cause to repeal this bill. We are in talks with different religious leaders, from Hindus, from Christians, from Jains, from Sikhs. Some Sikh leader has come openly that they will support Muslim All India Personal Board to get the bill repealed. And some people have said Muslims should protest like the farmers did in North India, Delhi, when 3 anti-farmers bill was introduced, and which was, and after 1 year of struggle by farmers from North India, South India, everywhere, all the farmers took place and took part in the protest, and they got the pressure so that the central government take back their bills. ये चीज़ें हम इस बिल के ताल्लुक से भी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से भी हम करना चाह रहे हैं। पूरा मन तरीके से పీస్ఫుల్లీ శాంతియుతంగా మా రాజ్యాంగంలో పొందపరిచిన హక్కులను వినియోగించుకుంటూ మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి ఈ బిల్స్ను, ఈ యాక్ట్ను రిపీల్ చేయడానికి మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం. ఆల్ ఇండియా పర్సనల్ లా బోర్డ్ ఒక సంస్థ, అందులో అన్ని మతపరమైన జమాత్లు అన్ని కూటమిగా ఒక అంబ్రెలా కిందికి వచ్చి మా సమాజానికి, మా రిలీజియన్కి సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై మాకు గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అదే గైడ్లైన్స్ను మేము కూడా వరంగల్లో పట్టుదలతోటి, దట్ we are also aware what the government, the fascist government of BJP has done by encroaching into our work properties. We are going to protest against this act. We will not break any law. We will not break any law. We will not make nuisance on the road. If we want to protest, we have the right to protest. Our constitution gives the rights to protest, but still we have to abide by the rules and regulations. We are law-abiding citizens of India. We are law-abiding citizens of Warangal, and Warangal is a place where Hindu, Muslim, Sikh, Isai सब मिलके रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास अमन और शांति सब है। हम इस
बात का फ़ख्र महसूस करते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर मिलजुल के रहते। तो हमें ये इत्तला मिल रही है कि कई हिंदू संगठन, कई सिख संगठन, कई क्रिश्चियन संगठन हमारे साथ तायद करने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए, शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार है। हम उन तक पहुँचे। हमारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी यही बात का अजाला हुआ कि हम दीगर मज़ाहिब के लोगों का भी सपोर्ट लेके इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रोटेस्ट रैलीज करेंगे, एक बड़ी मीटिंग करने का भी इरादा करे हैं। तो इसी ज़िम्मन में आज की जो रैली थी पोस्टपोन हो चुकी है। मैं इस स्वराज टीवी के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ उसमें ऐड करते हुए चलूँ, जब चारशंबे के दिन, वेडनेसडे के दिन 9 तारीख को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद मुसलमानों की आई, काफ़ी तादाद हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन की भी थी। तो वो लोग सब अपना सपोर्ट का अज़्म ज़ाहिर करे। हम सबके साथ मिल के वरंगल के हालात बखूबी हर कोई जानता है। यहाँ पर अमन शांति, गंगा जमुना तहजीब यहाँ चलती। यहाँ पर हमारे इफ्तार पार्टियों में हमारे बरादरान वतन के लोग आते। हम उनके प्रोग्रामों में उगादी जो पिछले दिनों हुआ, उगादी में हम उनको मुबारकबाद दिए, उनके ईदों पे हम मुबारकबाद दिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ फासिस्ट क़ुव्वतें हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। वो माहौल को ख़राब नहीं करना हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है। हम एक अमन पसंद कौम है, अमन पसंद, तरक्की पसंद कौम है। हम हिंदुस्तान की तरक्की में हमारी तरक्की देखते, हमारी तरक्की में हिंदुस्तान की तरक्की है बोल के हम सोचने वाले लोग हैं। वरंगल के नौजवानों से फिर एक बार अपील है, कोई हंगामा रही मत करिए। कोई आपको जो भी डायरेक्शंस दिए जाएंगे वो डायरेक्शंस को अवॉइड करते हुए, फॉलो करते हुए अपने अपने, अगर कोई गैदर भी हुए वो लोग अपने अपने घरों को वापस जाइए। इंशाल्लाह अनकरीब फिर आपको कॉल दी जाएगी। एक जैक की तैयारी भी हो रही, जॉइंट एक्शन कमेटी, कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी के जो मुस्लिम कायदीन हैं उनकी तरफ से एक अमन कमेटी बनाने की कोशिश करी, जैक कमेटी बनाने की कोशिश करी। जो 3 महीने का प्रोग्राम आज 10-11 कल से शुरू हो गया। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के अहकामात का जो सिलसिला था 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक चल रहा। उसमें एक कारवां निकालने की बात कही गई है। कारवां दिल्ली से निकलेगा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंच के फिर वापस दिल्ली पहुंचेगा, जिसके लास्ट उसमें जो चीज़ है, तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में बहुत बड़ा एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। उसी तरीके से हर स्टेट की रियासत के हेडक्वार्टर में, या जैसा तेलंगाना का रियासती हेडक्वार्टर है हैदराबाद, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम। वरंगल के तौर पे भी परसों जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कई लोग मशवरा दिए कि यहाँ पर भी एक 20,000 लोगों के साथ एक एहतजाजी जलसा करे। हम पूरे के पूरे कमिटेड होके पुलिस परमिशंस के साथ ये काम करेंगे। हम ये वादा करते हैं, अपने आप से भी वादा करिए, अल्लाह से भी वादा करिए कि अल्लाह की ज़मीन को बचाने के लिए हम अंत तक जिद्दोजहद करेंगे। हम इसमें झुकने का सवाल ही नहीं है। हमारा हक़ है, हमारा आईनी हक़ है। मैं जज्बाती हो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आप लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अमन शांति बरकरार रखते हुए अपने एहसासात को जाहिर करिए। नमाज का टाइम हो रहा।